Good morning, students. Today we are going to start our 6 number lesson, that is indices. In previous period we complete our 5th number lesson, that is operation on the rational numbers. आज से हम 6 number lesson शुरू करने वाले हैं. In 6 number lesson there is a first practice set, that is practice set number 26. So in practice set number 26 there are two types of questions, question number 1 and question number 2. Already right on the board. Before we solve this practice set number 26, we learned some basic concepts how to solve these questions. Okay, so now see what is the basic things to solve these questions. I write here one example like this: 2 into 2 into 2 into 2. Why we need to use the indices? क्यों हमें indices की जरूरत है वो हमें समझना है. एक दो एग्जांपल्स में यहाँ क्लियर कर रहा हूँ आपको. यहाँ देखिए मैंने 2 into 2 into 2 4 टाइम्स लिख दिया. इसे अगर मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, सो हाउ आई कैन सॉल्व दिस इज 2 into 2 is 4. ओके, नाउ दिस 2 times 2 is remaining. Done. Next step is what? This is 4 into 2 is 8. Correct. Remaining is again 2 and 8 into 2 is 16. Okay, so this is 2 into 2 into 2 into 2. 4 times of 2, answer is 16. Okay, done. I can write next one example here like this: 3 into 3 into 3 like this. Okay, so how this solve this? 3 into 3 is 9 and remaining is again 3, so answer of this one is 27. Done. So this 2 is how many times? 4 times. Therefore answer of this one is 16. So I can write this 16 like this: 2 raised to the power 4. देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूं इसको: 2 raised to the power 4, यानी 2 को हमने 4 टाइम्स लिखा है. ठीक है, यहां पे जो आंसर आया हमारा 27. हाउ आई कैन से दैट दिस इज 27 is 3 raised to the power 3. 3 raised to the power 3. So this 2 is called as a base. इसे हम क्या कहते हैं? Base. And this 4 is an index. Okay, this 3 is a base and this 3 is an index. So why we use these indices? So reason is what? Whenever we given a same digit multiplication for the more times, ठीक है, जब एक ही डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम ज्यादा बार दिया होता है, then we can use the indices to write this multiplication in a short form. यानी उसी मल्टीप्लिकेशन को हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इंडाइसेस का यूज करते हैं. जैसे अभी ये 2 into 2 into 2 4 टाइम्स, इतना लिखने से अगर हम 2 raised to the power 4 लिखते तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है. जैसे यहाँ 3 into 3 into 3 हमने 3 टाइम्स लिखा, ये लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है, इसी को मैं इंडाइसेस फॉर्म में 3 raised to the power 3 लिख सकता हूं. तो ये जो डिजिट होता है पहला वाला, इसे हम कहते हैं बेस. ठीक है, और जितनी बार आता है उसे हम कहते हैं इंडेक्स. और एक एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, देखो जैसे मैंने यहां लिखा 7 raised to the power 5. तो दिस 7 इज कॉल्ड एज अ बेस. इसे क्या कहते हैं? बेस. और ये क्या होता है? हमारा इंडेक्स. इसे क्या कहते हैं हम? इंडेक्स. और अगर लिखना कैसे? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो हम 7 into 7 into 7 into 7, यानी 7 को हमको 5 टाइम्स लिखना है. वो ठीक. तो ये इस तरह से हमको सॉल्व करना पड़ता है. यही प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में आपको दिया गया है. ये पढ़ते कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया. अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे कैसे? 5 is a base, 6 is a index, so I can say that 5 raised to the power 6. इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 raised to the power 6. Now see the practice set number 26. Question number first is was complete the given table below. हमको इसको complete करना है. Question number first is 3 raised to the power 4. So already solved question is there. So 3 is a base, 4 is a इंडेक्स. मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हमको कैसे लिखना है? 3 को 4 टाइम्स लिखना है और उसको आंसर सॉल्व करेंगे तो 81 आएगा. नाउ सी द सेकंड नंबर क्वेश्चन. 16 raised to the power 3. तो 16 is a what? Base. 3 is a what? Index. How to write this in multiplication form? 16 for the 3 times. Done. Got it?
what is the value of this one? So for value we have to solve this here 16 into 16 पहले हम वो सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 256 इतना हो जाएगा 256 now 16 is remaining so again multiply this one by 16 okay तो 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 16 6 are 96 remaining is 9 16 5 are 80 80 and 9 89 remaining is 8 16 2s are 32 32 and 8 40 so value of this one is 4096 got it now this is the remaining 3 blank is here so base is minus 8 so how you can write this one minus 8 is here index is how much 2 so now index is 2 got it how to write this one minus 8 is 2 times so minus 8 into minus 8 minus into minus plus so answer is plus 8 8s are 64 so answer is 64 plus 64 okay clear now see here मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हमको दिया गया है इसको यहाँ लिखना है तो 3/7 4 टाइम्स है तो ये 3/7 ये हो जाएगा हमारा बेस और 4 टाइम्स आया है इसलिए ये हो जाएगा पावर 4 ओके सो बेस इज 3/7 एंड इंडेक्स इज 4 नाउ सी हियर -13 रेज़ टू द पावर 4 क्लियर तो -13 तो बेस क्या हो जाएगा हमारा -13 इंडेक्स कितना है 4 हाउ टू राइट दिस वन इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म -13 into -13 into -13 into -13 चार बार हमको लिखना है और इसको सॉल्व करना है हमको बराबर तो -13 into -13 प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 169 और ये -13 into -13 ये भी हो जाएगा 169 माइनस माइनस प्लस इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं ये 2 का 169 ये 2 का 169 तो 169 into 169 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा हमको यहाँ लिखना है कर लेते हैं हम 9 9s are 81 ओके 9 6s are 54 एंड दिस वन 62 2 हमने लिख दिया 6 is remaining 9 1s are 9 and 6 15 फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 9s are 54 बचा 5 6 6s are 36 and 5 41 remaining 4 6 1s are 6 and 4 10 फिर प्लेस छोड़ दिए 9 6 1 इनका एडिशन करना है 1 6 ये हो जाएगा 15 कैरी 1 इधर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 2 8 5 6 1 2 8 5 6 1 दिस इज द आंसर क्लियर एक बार चेक कर लो फिर से 16 into 16 करना था 81 remaining 8 54 and 8 62 6 is remaining 9 1s are 9 and 6 15 फिर 6 से मल्टीप्लाई किए 54 remaining is 5 6 6 are 36 and 5 41 okay remaining is 4 6 1s are 6 and 4 10 फिर और प्लेस छोड़ दिए 1 9s are 9 1 6 are 6 1 1s are 1 1 हो गया ये 6 हो गया ये 10 15 कैरी 1 8 and 2 2 8 5 6 1 दिस इज द आंसर नाउ फाइंड द वैल्यू निकालना इसी तरह से हमको सॉल्व करना है तो ये 2 into 2 raised to the power 10 बोला है तो आपको इसको 10 टाइम्स लिखना है कितने टाइम्स लिखना है 10 टाइम्स लिखना है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 करेक्ट इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आप 1 by 1 स्टेप सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने इस तरह से करके दिया या डायरेक्टली भी कर सकते देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 ओके 32 2s are 32 2s are बोलो 32 2s are 64 64 2s are 128 128 2s are 256 256 2s are 256 2s are करना है हमको ठीक है तो कितना हो जाएगा 12 कैरी 1 बराबर 10 5 1 2 ओके 5 1 2 एंड 5 1 2s are 1024 तो इसका आंसर आएगा 1024
4। इसी तरह से आगे हमको सॉल्व करना है 5 रेज़ टू द पावर 3। तो 5 रेज़ टू द पावर 3 में हमको करना क्या है, देखो ये 5 रेज़ टू द पावर 3 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके, तो 25 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 125। ये -7 रेज़ टू द पावर 4 है, तो -7 रेज़ टू द पावर 4, -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, करेक्ट। ये -7 इंटू -7 49, और ये -7 इंटू 7 49, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो 49 इंटू 49, ओके। जो भी आंसर आएगा उसको वहां लिखना है हमें। तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, रिमेनिंग 8, 9 4 जा 36, 36 एंड 44, करेक्ट। यहाँ आ जाएगा 4 9 जा 36, 3 16, 16 एंड 3 19, 1 0 कैरी 1 4 2401। तो इसका आंसर कितना आया, 2401। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, -6 रेज़ टू द पावर 3। तो -6 रेज़ टू द पावर 3, तो -6 को हमको 3 टाइम्स लिखना है, ओके। देखो ध्यान दो इधर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और अगेन -6, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा। तो 36 इंटू 6 करेंगे आप, 6 6 जा 36, रिमेनिंग इज 6, 6 3 जा 18, 18 एंड 3 21, तो आंसर इज -216, ओके। देन 9 रेज़ टू द पावर 3 है, तो 9 रेज़ टू द पावर 3, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 टाइम्स हमको लिखना है। सो दिस इज 81, 81 इंटू 9 कर दिया हमने, बराबर। तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो इसका आंसर कितना आया, 729। देन 8 रेज़ टू द पावर 1, यहां ध्यान दो, 8 रेज़ टू द पावर 1, इसका मीनिंग क्या होता है, 8 का पावर 1 है, यानी 8 का 1 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। हाउ मच टाइम्स, 1 टाइम्स, ओके। सो आंसर इज 8। कोई भी नंबर का पावर अगर 1 आता है, सो आंसर इज दैट नंबर इटसेल्फ। रिमेंबर दिस थिंग। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10 रेज़ टू पावर 1, तो आंसर इज 10। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 100 रेज़ टू पावर 1, आंसर इज 100। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस रेज़ टू पावर 1, आंसर इज -5। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ -6 रेज़ टू पावर 1, सो आंसर इज -6। यानी कोई भी नंबर का अगर पावर 1 रहता है, सो दिस आंसर नंबर इज इटसेल्फ, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, 4/5 रेज़ टू द पावर 3। तो 4/5 रेज़ टू द पावर 3, हाउ यू कैन राइट, 4/5 4/5 एंड 4/5। सो ये हमने रैशनल नंबर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ऊपर 64 आ जाएगा। और 5 इंटू 3 टाइम्स, ये अभी हमने यहाँ पे किया था, 5 इंटू 5 3 टाइम्स 125, तो ये 125 यहाँ आ जाएगा। क्लियर, गॉट इट। देन लास्ट वन क्वेश्चन, -1 रेज़ टू द पावर 4। सो -1/2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू -1/2, 4 बार लिखना है हमको, -1/2 -1/2 एंड -1/2। अब यहाँ ध्यान देना, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इसको और दो स्टेप में हम कर सकते हैं। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 इंटू -1 1 एंड 2 2 जा 4, चलो हो गया। अभी इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। -1 इंटू -1 1 एंड 2 2 जा 4, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो क्या आएगा, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 4 4 जा 16, so answer is 1/16. so you have to solve this practice set number 26 like this. मैंने इस तरह से आपको सॉल्व करवा के दिया है। इसी तरह से आपको पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 26 सॉल्व करना है। फ्रॉम टुमारो वी कैन स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 27. बाय बाय।